नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आज काजी नजरुल विश्वविद्यालय में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक आंदोलन किया गया। यहाँ पर तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर कार्यालय में ताला लगा दिया और अन्य कर्मचारियों को उनके दफ्तरों से बाहर निकाल दिया। ये सभी विश्वविद्यालय के दरवाजे पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि तृणमूल छात्र परिषद हमेशा इस विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए आंदोलन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस बारे में तृणमूल छात्र परिषद के ज़िला अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने कहा कि यहाँ पर वाइस चांसलर द्वारा मनमर्जी की जा रही है। छात्रों से फीस के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है, लेकिन उनको कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। कई क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की बस बंद हो गई है। विश्वविद्यालय के छात्रों को उपयुक्त लैबोरेटरी नहीं मिलती। इस वजह से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो विश्वविद्यालय के छात्रों से फ़ीस ले रहे हैं और उस फीस को लेकर अदालत में केस किए जा रहे हैं और वकीलों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। आंदोलन तो देखুন কন্টিনিউ চলছে। আন্দোলন হচ্ছে এখানে ছাত্রদের অস্তিত্বের লড়াই, আর একদিকে হচ্ছে এই প্রশাসনের ক্ষমতা প্রদর্শন। যে ভিসি, রাজ্যপাল, এরা যারা প্রশাসনিক পদে রয়েছে তারা ক্ষমতা প্রদর্শন করছে কাদের উপরে? ছাত্রদের উপরে। এরা প্রশাসনিক যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করছে এবং আমি জানি আজকেও এরা প্রশাসনিক ক্ষমতা অপব্যবহার করবে। কোনোদিন ছাত্রদের কথা এরা মাথায় রেখে কোনো কাজ করেনি আজ পর্যন্ত। অথচ ছাত্রদের যে টাকা, আমাদের যে ইউনিভার্সিটিতে যে রেভিনিউ ওঠে, যারা ছাত্রছাত্রীরা অ্যাডমিশনের সময় যে টাকা দিয়ে ভর্তি হয়, সেই টাকা এরা কোর্টে কেস করি খেলা খেলছে। এক পক্ষ কেস করছে, আরেক পক্ষ ইউনিভার্সিটি থেকে টাকাটা উকিলকে দিয়ে দিচ্ছে। এই ছাত্রদের টাকা নিয়ে যদি এরকম ছিনিমিনি খেলা হয়, ছাত্রদের টাকাগুলো যদি আজকে কোর্টে দেওয়া হয়, ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন কোথার থেকে হবে? ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন কোথার থেকে হবে? এদের মুখ্য ভূমিকা ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন নয়, এদের ক্ষমতায় টিকে থাকাটা, এদের ক্ষমতা প্রদর্শন করাটা। রাজ্যপালের অস্তিত্ব নিয়ে পরে যে ক্ষমতা প্রদর্শন চলছে সেইটাকে টিকিয়ে রাখার লড়াই এদের, আর আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আমরা এই লড়াইয়ে জিত হাসিল করব, তাছাড়া আমরা আজকে এখান থেকে উঠছি না। আপনারা তালা কেন মানলেন? বিভিন্ন কারণে। দেখুন, ইউনিভার্সিটিতে বাস বন্ধ হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় স্টুডেন্টদের কোনো ফেসিলিটি নাই, ল্যাব নাই, কিচ্ছু নাই ইউনিভার্সিটি থেকে, কিচ্ছু নাই। অথচ আগেরবার আপনারা দেখেছিলেন যে একটা নির্দেশিকা বেরিয়েছিল, সেটাতে প্রায় 50 লক্ষ টাকা এরা উকিলকে দিয়েছে। আর এরা বিভিন্ন জায়গায় ফান্ড তো দূরের কথা, ইউনিভার্সিটি কী করে ফান্ড বাড়াবো তার কোনো চিন্তা নেই। ফান্ডটাকে কীভাবে অন্য জায়গায় দিয়ে দেবো, উকিলকে দিয়ে দেবো, একে দিয়ে দেবো, ওই টাকাটা ফেরত দিক, ততক্ষণ আমরা আন্দোলন চালাবো। ওই টাকাটা এরা এই আন্দোলন, এই যে আমাদের যে আন্দোলন চলছে এইটা এই কারণে যে এই টাকাটা আমাদের ফেরত দিক। যে 50 লক্ষ টাকা উকিলের পেছনে খরচা করেছে, এটা তো ছাত্রছাত্রীদের টাকা। ছাত্রছাত্রীরা যে ভর্তি হয়েছে সেই টাকা তারা পেমেন্ট করেছে, সেই টাকাগুলোকে আজকে তারা ইউনিভার্সিটিতে কেসের পিছনে খরচা করেছে। এই টাকাগুলো যে বা যারা কেসের পিছনে খরচা করেছে, যাদের নামে কেস আছে, তারা এই টাকাগুলো ফেরত দেবে এবং ইউনিভার্সিটিকে আমরা বাঁচাবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বপ্নের ইউনিভার্সিটি বাঁচবে এবং আসানসোল বাঁচবে সর্বোপরি। আসানসোলের কথা মাথায় রেখে সবকে, শুধু ছাত্রছাত্রীরা না, আসানসোলের জনগণকেও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকতে হবে। আমার নাম অভিনব মুখার্জি, জেলা সভাপতি তৃণমূল ছাত্র।
कोलकाता के मेटिया बुरुज के विष्णु मामा फैशन प्राइवेट लिमिटेड और आसनसोल के नीलम ड्रेसेस द्वारा संयुक्त रूप से आज निघा के एक निजी होटल में 8वें आसनसोल एक्सपो का आयोजन किया गया। यहां पर पूरे भारतवर्ष से गारमेंट व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी आए थे। ये प्रदर्शनी सोमवार और मंगलवार 2 दिन चलेगी। इसका उद्देश्य आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के गारमेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को देश भर में जो गारमेंट के नए कलेक्शन आए हैं या अभी तक जिनके बारे में यहाँ के व्यापारियों को पता नहीं है, ऐसे व्यापारियों से यहाँ के व्यापारियों को मिलवाना है। इस बारे में विष्णु प्रसाद संतोरिया ने कहा कि गारमेंट एक्सपो का ये 8वां साल है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि इस क्षेत्र के गारमेंट व्यापारियों को पूरे देश में सबसे अच्छे गारमेंट कलेक्शन के बारे में पता रहे, इसलिए वो पूरे देश से गारमेंट व्यापारियों को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी, जिसके ज़रिए यहाँ के गारमेंट व्यापारियों को पूरे देश भर के गारमेंट कलेक्शन के बारे में पता चलेगा। वहीं विष्णु मामा फैशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विवेक संतोरिया ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के गारमेंट व्यापारियों को पूरे देश के गारमेंट कलेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है और वो अपने पसंद के मुताबिक ऑर्डर देते हैं, जिससे कि आने वाले त्योहारों के मौसम में वो आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के ग्राहकों को बेहतर से बेहतर गारमेंट और अन्य परिधानों को उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुल 80 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर यहाँ विष्णु प्रसाद संतोरिया, विवेक संतोरिया, विशाल संतोरिया सहित विष्णु मामा फैशन प्राइवेट लिमिटेड और नीलम ड्रेसेस के तमाम कर्मचारी उपस्थित थे। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, साथ ही सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। तो मैं सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूँगा आप सभी से कि प्रोग्राम डिले हुआ, थोड़ा सा एसी वर्क कम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का जो जोश होगा ना, वो मेरे इस टेंशन को और मेरे दिल की धड़कन को थोड़ा सा स्टेबल रखने में सहायता करेगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जोश से जोरदार एक बार ताली हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिराट ड्रेसेस से यहाँ पे मेहताब भाई आए हुए हैं, कृपया आप स्टेज पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि मैं अच्छा वक्ता हूँ। जब विवेक भाई बोलते हैं ना, तो हम सबकी इच्छा करती है कुछ सुने, कुछ अंदर आ पाए। मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ हमारे विवेक भाई का। देखिए, काम कम हो बेसी हो वो अलग बात है, लेकिन इतने लोगों को एक साथ एक छत के नीचे लाना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। मैं चाहूंगा कि सभी हमारे विवेक भाई के लिए जोरदार ताली। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समय बहुत हो चुका है। एक अच्छी बात है कि हर व्यक्ति, हर पूरा टीम मेंबर विष्णु मामा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यहाँ पे है। और मैंने पर्सनली 2-3 विवेक भाई के साथ कस्टमर्स का विजिट किया था। कस्टमर इतना चाहते हैं विवेक भाई को, इतना इस पर विश्वास करते हैं कि काम बहुत बढ़िया होगा। पूरी एनर्जी के साथ 2 दिन हमको काम करना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मामा फैशन प्राइवेट लिमिटेड, मेटियापुर और बड़ा बाजार और नीलम जैसे आसनसोल की तरफ से आज हम सभी सप्लायर का एवं जो भी कस्टमर्स आएंगे उनका स्वागत करता हूं और साथ साथ हम प्रेस वाले सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं कि आप लोग के सहयोग के बिना हमारा ये काम सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आप लोग सभी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में मेरे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं। मेरे 3 बेटा है, एक लड़का सर्विस करता है और ये विवेक कुमार संतोरिया ये कलकत्ता का काम ज़्यादा देखता है और ये विकास कुमार संतोरिया ये आसनसोल का काम देखता है। ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगी? ये हमारी प्रदर्शनी आज और कल 2 दिन चलेगी, 8 तारीख और 9 तारीख। देखा गया कि इसमें बहुत जगह का स्टॉल लगाए हैं, तो यहाँ पे कौन जगह के व्यवसाय आए? यहाँ पर आपको जाकर कलकत्ता के, अहमदाबाद के, दिल्ली के, अहमदाबाद में यहाँ हम लोग कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, ऑल
ओवर इंडिया से जो भी लीडिंग सप्लायर है, फैक्ट्रीज़ हैं जो माल बनाते हैं, वो अपना सैंपल डिस्प्ले दुर्गा पूजा बंगाल के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो दुर्गा पूजा के लिए जो फेस्टिव कलेक्शन होता है, उसके कलेक्शन में हम लोग तो एक रिटेल कंज्यूमर जो होता है वो दुकान पे जाता है, सिर्फ एक पीस तुरंत पसंद आता है ले लेता है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है ना वो 4-5 महीनों से चलती है। तो हम लोग ये दुर्गा पूजा के लिए जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपने सैंपल बनाए हैं। अब उस सैंपल को डिस्प्ले करने के लिए जो भी रिटेल आउटलेट्स चाहे हमारे बंगाल में लीडिंग आउटलेट्स हैं, हम लोगों ने सभी को यहाँ इन्वाइट किया। जैसा आप देख सकते हैं अभी तक सुबह से ही लगभग 100 से ज़्यादा आउटलेट्स वाले लोग आ चुके हैं और भी बहुत आने वाले हैं। हम लोगों ने लगभग टारगेट हमारा 2 दिनों में लगभग 500 रिटेल आउटलेट जो भी बंगाल की लीडिंग है उनको यहाँ बुलाया है। वो लोग सबको ही अपना आके अब कलेक्शन चॉइस करेंगे और ऑर्डर देके जाएंगे और वो डिस्पैच उनको फिर हम लोग इतने टाइम पीरियड में करेंगे। बेसिकली ये मतलब होलसेलर है और दुकानदारों के लिए लगा सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों के लिए ही है। यहाँ कोई रिटेल B2C कुछ नहीं है, टोटल B2B है। हम लोगों को हमारा टारगेट देखिए B2C भी जो होता है ना, उसके पहले की मैं बताया ना मेहनत होती है। एक बिल्डिंग बनता है, हम लोग सिर्फ ऊपर का शोकेस देखते हैं, लेकिन हमारे जो दुकानदार भाई इतना मेहनत करते हैं, दूर दूर से आकर यहाँ पे कलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो फैक्ट्रीज़ है वो कितनी मेहनत करते हैं, ये उसके पीछे की पूरी पिलर अभी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका ये जो प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी जो बिजनेस है उनको एक मंच प्रदान करना, आप एक पुल का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लगभग 80 स्टॉल अभी लगे हुए हैं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आई हुई हैं। और भी ये जो आप कर रहे हैं ये कौन सा साल है? ये हमारा 8th आसनसोल गारमेंट एक्सपो है। हम लोग आसनसोल के रहने वाले हैं, तो हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हम लोग आसनसोल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अभी बहुत लोग कलकत्ता फेयर करते हैं, बॉम्बे फेयर करते हैं, लेकिन हम लोग आसनसोल को एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं कि ऑल ओवर बंगाल, ऑल ओवर झारखंड, ऑल ओवर बिहार के लोग भी यहाँ के परचेजिंग कर सकें। तो आसनसोल को एक बिजनेस हब के हिसाब से हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार संतोरिया, डायरेक्टर विष्णु मामा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड। आपका नाम? विष्णु प्रसाद संतोरिया, कोऑर्डिनेटर विष्णु मामा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनर नीलम देशे आसनसोल। আমরা আজ থেকে এই 8 বছর ধরে করছে, আর এবারে খুব বড় করেই করছে, যেটা গ্র্যান্ড হোটেল হয় তার থেকে ডবল করে করছে। আগের থেকে যে ব্যবসা একটা 2 মাসের ঢিলে ছিল, সেই হিসাবে এখন নতুন কালেকশন সব বার হয়েছে, সেই হিসাবে আসানসোলের প্রথম ফেয়ার করছে আজকে। আচ্ছা, আপনি বলেন এটা 8 বছর থেকে চলছে, তো যখন প্রথম স্টার্ট করেছিলেন আর এখন তার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স অনেক তফাৎ। আগে ছিল 15-20 টাকার স্টলে করছে, তারপরে 40টা স্টলে করেছে, তারপরে 50টা, এখন 80টা স্টলে করছে। আমার কাছে আসানসোলের সবচেয়ে বড় ফেয়ার এটা করছে। মানে মানুষের ইন্টারেস্ট যাচ্ছে, ইন্টারেস্ট যাচ্ছে, সেটা মানুষ দেখতে পায় না, থেকে যেতে পারে না কলকাতায়, সেই কালেকশনগুলো নিয়ে আসানসোলই পেয়ে যাচ্ছে। বুকিং করছে বিষ্ণু মায়ানের কোম্পানি থেকে। আপনার কি শুভেচ্ছা বার্তা আছে স্টলের জন্য? তাই আশা করি যে সবাই যে উদ্দেশ্য লেগেছে, একটু লেট হয়ে গেছে, তার জন্য উনি সরি বলেছে। আর আশা করি এসি চালু হয়ে কাস্টমারের ফোনের ভালোই আছে। আশা করি দুদিনের বুকিং খুবই ভালো পাবে। আপনার পরিচয়? আমি টিএম ডেস প্রাইভেট লিমিটেড, দিলবার মুন্ডা। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन।
यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल नगर निगम की तरफ से नगर निगम के सभी 106 वार्डों में सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण और फुटपाथ पर हॉकरों को व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ है। इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रवीउल इस्लाम के नेतृत्व में नियामतपुर के नितुरिया रोड इलाके में हॉकरों को बताया गया कि वो रोज़ ठेले पर अपने सामान लेकर आएं और दिन भर व्यापार करें और फिर ठेला लेकर चले जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है, फुटपाथ पर लोग चल नहीं पा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्थायी दुकानदारों के बारे में भी कहा कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों से आगे अपनी दुकानों को बढ़ा ले रहे हैं, जिससे कि रास्ते पर लोगों को चलने में समस्या हो रही है। उन्होंने उन लोगों को भी हिदायत दी कि वो ऐसा न करें। वहीं पार्किंग को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं होगा तो दुकानों में जो ग्राहक 2 चक्का वाहन लेकर आएंगे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन 4 चक्का वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। रवीउल इस्लाम ने एक बार फिर कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामने सरो ना, सामने सरो ना। আপনারই দোকানের নীতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীতি একদম একটা ইনস্ট্রাকশন আছে, আমরা কাউকে কোনো ক্ষতি করবো না, কিন্তু মানুষকে যাতায়াত করতে দিতে হবে। আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন ঠিক আছে, হয়ে গেল তো अंदर घुसाइए, किसका है अंदर घुसाइए, बस अंदर करिए, अपने घुसा दो, जगह किसका है, इसको इनका तो कोई है, ये सब नहीं चलेगा। कपड़ा नहीं है, कपड़ा लेके चल जाइए। क्या जवाब के बढ़िएगा तो दूसरा कोई क्या करेगा। चलिए इसको खोलिए, बनाइए इसको, बोलो आएगा जगह लेके नहीं पाएंगे। चला जाएगा
আমাদের আজকে ছোট জায়গায় আমাদের সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটাই সরকারি জমি দখল করা যাবে না। বাজার করো, ফুটপাত করো, হকারি করো, কিন্তু সরকারি জমি দখল করে পার্মানেন্ট কোনো দোকান করা যাবে না। যারা ফুটপাতে হকার রয়েছে তাদের আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা ফুটপাত ছেড়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দোকান করুন এবং কোনো ছাউনি করবেন না, সেই দোকান উঠিয়ে নিয়ে আবার রাত্রেবেলায় চলে যান। আর এই জন্য আমরা এইটা এই জন্যই করছি যে মানুষ রোডটা চড়ানো হলে গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করবে কি করে। আমরা এখানে কয়েকটা পার্কিংও আছে, এখানে নিয়াজপুরেও একটা পার্কিং আছে, সেই পার্কিংও আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন অধীনে রয়েছে। আমরা আরও কয়েকটা পার্কিং করার চেষ্টা করছি, মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে গাড়ি রাখতে পারে এবং রোড যেন সবসময় চওড়া থাকে। রোড চওড়া না থাকলে মানুষ যাতায়াত করতে পারবে না। এটা আসানসোল কর্পোরেশন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ মোতাবেক আমরা কাজ করছি। সরকারি জমি দখল করতে আমরা দেবো না। যারা রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ, আপনার দোকান করুন, আমরা কাউকে দোকান থেকে হাঁটাচ্ছি না। আজকে কি আপনারা ডেন টু ডেন ক্লিয়ার করছেন? হ্যাঁ, ডেন টু ডেন আমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে। টোটাল যেখানে যেখানে যারা ইনকোয়াস্ট করে বসেছে, যারা ঢালাই করে দিয়েছে, সেই ঢালাইগুলোর মধ্যে ভাঙা হচ্ছে। আপনার নাম? রবিউল ইসলাম। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ज्योति बासु की 111वीं जयंती के अवसर पर पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से 8 जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज आसनसोल नगर निगम के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत गोपाल नगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में भी एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन पार्थो मुखर्जी, सत्य चैटर्जी, जयदीप चक्रवर्ती, हेमंत सरकार और रतन मजुमदार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर वामपंथी श्रमिक नेता हेमंत सरकार ने कहा कि आज ज्योति बसु की जयंती है। ज्योति बसु न सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बल्कि वो श्रमिक आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने हमेशा श्रमिक हितों की लड़ाई लड़ी और आज जबकि पूंजीपतियों के स्वार्थ को देखते हुए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे में ज्योति बसु की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, इससे श्रमिकों के हितों की अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता के बारे में कहा कि इसके ज़रिए श्रमिकों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीटू इसके खिलाफ पहले भी आंदोलन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। কমরেড জ্যোতি বসুর 111তম জন্মদিন প্রতি বছরই হচ্ছে যে কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মদিনে CI2 সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী হচ্ছে যে আমরা রক্তদানের মধ্য দিয়ে ওই দিনটিকে উদযাপন করি এবং এবছরও হচ্ছে যে আমরা সেইভাবে হচ্ছে যে কমরেড জ্যোতি বসুর 111তম জন্মদিন উপলক্ষে এই রক্তদান শিবির আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 8টি জায়গায় হচ্ছে যে চলছে এবং এখানে এখনও পর্যন্ত 40-এর ওপরে হচ্ছে যে রক্তদান শুরু দেওয়া হবে এবং আমরা জ্যোতি বসুকে এই কারণেই শ্রদ্ধা করি যে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমরেড জ্যোতি বসুর একটা বিশাল অবদান আছে
এবং শুধু ভারতবর্ষ না, সারা পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে যে কমরেড জ্যোতি বসু শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। এবং জ্যোতি বসু একজন মানুষ, যে মানুষ হচ্ছে যে প্রথম বলেছিলেন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কোয়ালিশনের যুগ শুরু হলো, কোনো একক দল ভারতবর্ষের সরকার করতে পারবে না। আজ আমরা দেখি যে জ্যোতি বসু যা বলেছিলেন তার সাথে, এবং আজকের দিনে ওই জন্য আমরা জ্যোতি বসুকে বিশেষ করে স্মরণ করছি আগামী দিনের শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য। এবং রক্তদানের মধ্যে দিয়ে 10 তারিখে আমাদের প্রতিবাদ দিবস হচ্ছে সারা দেশব্যাপী। কারণ আপনারা জানেন যে এর ইতিমধ্যেই কর্পোরেট দ্বারা মদতপুষ্ট সরকার হচ্ছে যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও সংবিধানকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা রায় ভারতবর্ষের মানুষ দিয়েছে, আমরা সেই লড়াই লড়ে যাচ্ছি। শ্রমিক শ্রেণীর উপরে যে আক্রমণ তারও মোকাবিলা আমরা CI2 করছি, এবং যৌথ আন্দোলন সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে CI2 একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সারা ভারতবর্ষে করছে। সে কোল ইন্ডাস্ট্রি থেকে, ইস্পাত শিল্প থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে পরিবহন, সর্বত্র আজকে শ্রমিকদের উপরে একটা আক্রমণ এসেছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে শ্রম আইন ছিল তা বাতিল করেছে এই সরকার, এবং সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু হয়েছে, নতুন আইন, যে আইনে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা কর্পোরেটের হাত শক্তিশালী করা হয়েছে। শ্রম আইনগুলোকে বাতিল করে 4টে শ্রমিক কোডে শ্রমিকদের আইন করেছে। সে আইনে কর্পোরেটকেই হাত শক্ত করেছে, সে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হোক বা শ্রমিকদের যে অধিকারের প্রশ্নেই হোক। হচ্ছে যে আজকে এটা প্রথম কথা। পরিবহনে হচ্ছে যে আর গভর্নমেন্টের কোনো ভূমিকাই থাকবে না, সমস্তটাই হচ্ছে যে প্রাইভেটের হাতে চলে যাবে। অটোমোবাইল থেকে যে মোবাইল যে দপ্তর, অটো দপ্তর, সে দপ্তর থাকবে না, আইটি উঠে যাবে। সারা ভারতবর্ষে একটাই আইন চলবে, যে দোষী তাকে প্রমাণ করতে পারবে নির্দোষ। অর্থাৎ আমাদের দেশে এই আইন চালু হয়ে গেল, ড্রাইভারদের উপরে আক্রমণ আসছে, এবং 1 জুলাই থেকে আইন চালু হয়েছে। তাই আমরা 10 তারিখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে এই মুভমেন্টে, এমনকি বিজেপির যে ট্রেড ইউনিয়ন, কয়লা খনি মুভমেন্টে বলি, ইস্পাত শিল্প বলি, সেখানেও তাদেরও হচ্ছে যে ইউনিয়ন যেটা আছে BMS, তারাও হচ্ছে যে আজকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সাথে বাধ্য হচ্ছে। আক্রমণটা খুব তীব্র। তাই জ্যোতি বসুর এই রক্তদানের মধ্যে দিয়ে ওনার দেখানো পথে শ্রমিক আন্দোলনকে আগামী দিনে মুক্তির, শ্রমিকদের যে দাবি দাওয়া তাকে আদায় করা শুধু না, একটা মুক্তির যে পথ, সেই পথে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমরা এই দিনটাকে বেছে নিয়ে রক্তদান করছি এবং শপথ গ্রহণ করছি যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিটি স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যে CI2 যে তার ভূমিকা, সেই ভূমিকা আমরা পালন করব। এইটাই হচ্ছে যে আজকে আমাদের প্রথম। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই
যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।